حدیث بخاری میں رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جب بھی میرا امتی نماز فجر کے فرض کے بعد یہ کلمات پڑھے گا تو ان کی بخشش فرما دی جائے گی، اور نماز فجر مکمل پڑھ لینے کے بعد 70 بار اس مبارک کلمہ کو پڑھے گا تو اللہ رب العزت کے ملائکہ ان کی حاجات پوری کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، جب طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا اور ایک کافر بادشاہ جالوت سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج لے کر میدان جنگ میں نکلے۔ جالوت بہت ہی قد آور اور نہایت ہی طاقتور بادشاہ تھا۔ وہ اپنے سر پر لوہے کی جو ٹوپی پہنتا تھا اس کا وزن 300 رتل تھا۔ جب دونوں فوجیں میدان جنگ میں لڑائی کے لیے صف آرائی کر چکی تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں یہ اعلان فرما دیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی شہزادی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کر دوں گا۔ یہ فرمان شاہی سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، جو ابھی بہت ہی کمسن تھے اور بیماری سے چہرہ زرد ہو رہا تھا، اور غربت و مفلسی کا یہ عالم تھا کہ بکریاں چرا کر اس کی اجرت سے گزر بسر کرتے تھے۔ روایت ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام گھر سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے تھے تو راستہ میں ایک پتھر یہ بولا کہ اے حضرت داؤد، مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر دوسرے پتھر نے آپ کو پکارا کہ اے حضرت داؤد، مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر ایک تیسرے پتھر نے آپ کو پکار کر عرض کیا کہ اے حضرت داؤد علیہ السلام، مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ان تینوں پتھروں کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنی گوپھر لے کر صفوں سے آگے بڑھے، اور جب جالوت پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے ان تینوں پتھروں کو اپنی گوپھر میں رکھ کر اور بسم اللہ پڑھ کر گوپھر سے تینوں پتھروں کو جالوت کے اوپر پھینکا، اور یہ تینوں پتھر جا کر جالوت کی ناک اور کھوپڑی پر لگے اور اس کے بھیجے کو پاش پاش کر کے سر کے پیچھے سے نکل کر جالوت کو لگے اور سب کے سب مقتول ہو کر گر پڑے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے لا کر اپنے بادشاہ حضرت طالوت کے قدموں میں ڈال دیا۔ اس پر حضرت طالوت اور بنی اسرائیل بے حد خوش ہوئے۔ جالوت کے قتل ہو جانے سے اس کا لشکر بھاگ نکلا اور حضرت طالوت کو فتح مبین ہو گئی، اور اپنے اعلان کے مطابق حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا اور اپنی آدھی سلطنت کا ان کو سلطان بنا دیا۔ پھر پورے 40 برس کے بعد جب حضرت طالوت بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے، اور جب حضرت شمویل علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ آپ سے پہلے سلطنت اور نبوت دونوں اعزاز ایک ساتھ کسی کو بھی نہیں ملا تھا۔ آپ پہلے شخص ہیں کہ دونوں عہدوں پر فائز ہو کر 70 برس تک سلطنت اور نبوت دونوں منصبوں کے فرائض پورے کرتے رہے، اور پھر آپ کے بعد آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور نبوت دونوں مرتبوں سے سرفراز فرمایا۔ بنی اسرائیل کا یہ عام دستور تھا کہ وہ بالکل ننگے بدن ہو کر مجمع عام میں غسل کیا کرتے تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی قوم کے ایک فرد تھے اور اسی ماحول میں پلے بڑھے تھے، لیکن خداوند قدوس نے ان کو نبوت اور رسالت کی عظمتوں سے سرفراز فرمایا تھا۔ اس لیے آپ کی عصمت نبوت بھلا اس بے حیا سوز بے غیرتی کو کب گوارا کر سکتی تھی۔ آپ بنی اسرائیل کی اس بے حیائی سے سخت نالاں اور انتہائی بیزار تھے، اس لیے آپ ہمیشہ یا تو تنہائی میں یا تہبند بیٹھ کر غسل فرمایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ آپ کبھی بھی ننگے ہو کر غسل نہیں فرماتے تو ظالموں نے آپ پر بہتان لگا دیا کہ آپ کے بدن کے اندرونی حصہ میں یا کوئی ایسا عیب ضرور ہے کہ جس کو چھپانے کے لیے ہی کبھی برہنہ نہیں ہوتے، اور ظالموں نے اس تہمت کا اس قدر اعلان اور چرچا کیا کہ ہر کوچہ و بازار میں اس کا پروپیگنڈا پھیل گیا۔ اس مکروہ تہمت کی سورش کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب نازک پر بڑا صدمہ اور رنج گزرا اور آپ بڑی کوفت اور اذیت میں پڑ گئے، تو خداوند قدوس اپنے مقدس
मुकद्दस कलीम के रंज गम को भुला कब गवारा फरमाता और अपने एक बरगुज़ीदा रसूल पर एक ऐब की तोहमत भला खालिक के आलम को कब और क्यों कर और किस तरह पसंद हो सकती थी। अर्हमुर राहिमीन ने आपकी बरात और बेऐबी ज़ाहिर कर देने का एक ऐसा जरिया पैदा फरमा दिया कि दम जदन में बनी इसराइल के प्रोपेगंडू और उनके शकूक व शुबहात के बादल छट गए और आपकी बरात और बेऐबी का सूरज आफताब आलम ताब से ज्यादा रोशन व आश्कार हुआ। और वो यूं हुआ कि एक दिन आप पहाड़ों के दामनों में छुपे हुए एक चश्मा पर गुस्ल के लिए तशरीफ ले गए और ये देख कर के यहाँ दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं है, आप अपने तमाम कपड़ों को एक पत्थर पर रखकर और बिल्कुल बरहाना बदन होकर गुस्ल फरमाने लगे। गुस्ल के बाद जब आप लिबास पहनने के लिए पत्थर के पास पहुँचे तो क्या देखा कि वो पत्थर आपके कपड़ों को लिए हुए सरपट भागा चला जा रहा है। ये देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी उस पत्थर के पीछे पीछे दौड़ने लगे कि सूबी हिजर, यानी ये पत्थर मेरा कपड़ा, इसे पत्थर मेरा कपड़ा। मगर ये पत्थर बराबर भागता रहा, यहाँ तक के शहर की बड़ी बड़ी सड़कों से गुजरता हुआ गली कूचों में पहुँच गया और आप भी बरहाना बदन होने की हालत में बराबर पत्थर को दौड़ाते चले गए। इस तरह बनी इसराइल के हर छोटे बड़े ने अपनी आंखों से देख लिया कि सर से पांव तक आपके मुकद्दस बदन में कहीं भी कोई ऐब ना था, बल्कि अक़दस का हर हिस्सा हुस्न जमाल आपके जिस्म अक़दस में इस कदर नुक्ता कमाल को पहुँचा हुआ है कि आम इंसानों में उसकी मिसाल तकरीबन महाल है। चुनाचे बनी इसराइल के हर फर्द की जुबान पर यही जुमला था कि खुदा की कसम मूसा बिल्कुल ही बेऐब है। जब ये पत्थर पूरी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बरात का ऐलान कर चुका तो खुद ब खुद शहर गया। आपने जल्दी से अपना लिबास पहन लिया और उस पत्थर को उठाकर अपने झोले में रख लिया। मैदान तीह में इस पत्थर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा मार दिया था तो उसमें से 12 चश्मे जारी हो गए थे, जिसके पानी को 40 बरस तक बनी इसराइल मैदान तीह में इस्तेमाल करते रहे, जिसका पूरा वाकया पहले गुजर चुका है। कुरान मजीद की आयत मोजज़ात के मुनकरीन जो हर चीज को अपनी नाके से अकल की ऐनक ही से देखा करते हैं, इस पत्थर से पानी के चश्मों का जारी होना महाल करार देकर इस मोजज़ा का इनकार करते हैं और कहते हैं कि हमारी अकल इसको कबूल नहीं कर सकती कि इतने छोटे से पत्थर से 12 चश्मे जारी हो गए। हालांकि ये मुनकरीन अपनी आंखों से देख रहे हैं कि बाज पत्थरों में खुदावंद ताला ने ये तासीर पैदा फरमा दी है कि वो बाल मोड़ देते हैं। बाज पत्थरों का ये असर है कि वो सिरका को तेज और तरश बना देते हैं। बाज पत्थरों की ये खासियत है कि वो लोहे को दूर से खींच लेते हैं। बाज पत्थरों से मूजी जानवर भाग जाते हैं। बाज पत्थरों से जानवरों का जहर उतर जाता है। बाज पत्थर दिल की धड़कन के लिए तरियाक है। बाज पत्थरों को न आग जला सकती है न गर्म कर सकती है। बाज पत्थरों से आग निकल पड़ती है, आतिश फिशा फट पड़ता है। तो जब खुदावंद कुद्दूस ने पत्थरों में किस्म किस्म के असरात पैदा फरमा दिए हैं तो फिर इसमें कौन सी खिलाफ अकल और महाल बात है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इस पत्थर में अल्लाह ताला ने ये असर बख्श दिया और इसमें ये खासियत अता फरमा दी कि वो जमीन के अंदर से पानी जज्ब करके चश्मों की शक्ल में बाहर निकालता रहे, या इस पत्थर में ये तासीर हो कि जो हुआ उस पत्थर से टकराती हो वो पानी बनकर मुसलसल बहती रहे। ये खुदावंद कादिर और कदीर की कुदरत से हरगिज हरगिज ना कोई बाईद है न महाल न खिलाफ अकल। लिहाजा इस मौजज़ा पर ईमान लाना जरूरियात दीन में से है और इसका इनकार कुफ्र है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, फरमाया रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह ताला ने एक बंदे का दर्जा जन्नत में बुलंद फरमाता है तो बंदा अर्ज करता है, ए रब मुझे ये दर्जा कैसे मिला? अल्लाह ताला फरमाता है, तेरे बच्चे की तेरे लिए दुआए मगफरत करने की वजह है। हदीस में आया है, जो शख्स हर रोज बाद आज नमाज फर्ज 3 बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहे अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाह बख्श देगा, और जो शख्स बाद आज नमाज फजर के 7 मरतबा पढ़े तो अल्लाह ताला उस पर दोज़ख के 7 तबके हराम कर देगा, और जो शख्स 8 बार पढ़े तो अल्लाह ताला उसके लिए बहिश्त के 8 दरवाजे खोल देगा, और जो 70 बार पढ़े तो अल्लाह ताला उसको निगाह रहमत से 70 बार देखेगा, और जो 100 बार पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसको और उसके माँ बाप को बख्श देगा, और जो 1000 बार पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसको पुल सिरात के हजारों अजाबों से दूर रखेगा, और जो शख्स 1,00,000 बार पढ़कर मैयत को उसका सवाब बख्शेगा तो अल्लाह ताला उस मैयत के तमाम गुनाह माफ फरमाएगा और उसकी मगफरत करेगा।
अगरचे वो मुस्तहिक अजाब ही क्यों ना हो। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि फरिश्ते दस्तरखान में रोटी और गोश्त लेकर आसमान से जमीन पर नाजिल हुए, और बाज रिवायतों में ये भी आया कि तली हुई एक बहुत बड़ी मछली थी जिसमें कांटा नहीं था और उसमें से रोगन टपक रहा था, और उसके सर के पास नमक और दुम के पास सिरका था, और इसके इर्द गिर्द किस्म की सब्जियां थी और 5 रोटियां थी। एक रोटी के ऊपर रोगन जैतून, दूसरी पर शहद, तीसरी पर घी, चौथी पर पनीर, 5वीं पर गोश्त की बोटियां थी। दस्तरखान के इन सामानों को देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के एक हवारी शमऊन ने कहा, जो तमाम हवारियों का सरदार था, कि ए रूहुल्लाह, ये दस्तरखान दुनिया के खानों में से है या आखिरत के? तो आपने फरमाया कि ये ना तो दुनिया के खानों में से है ना आखिरत के खानों में से है, बल्कि अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामिला से तुम्हारे लिए इस खाने को अभी अभी इजाद फरमा कर भेजा है। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को हुक्म दिया कि खूब शिकम सैर होकर खाओ, और खबरदार इसमें किसी किस्म की खियानत न करना, और कल के लिए जखीरा बना कर न रखना। मगर बनी इसराइल ने इसमें खियानत भी कर डाली और कल के लिए जखीरा बनाकर भी रख लिया। इस नाफरमानी की वजह से अल्लाह ताला का उन लोगों पर ये अजाब आया कि ये लोग रात को सोए तो अच्छे खासे थे, मगर सुबह को उठे तो मसख होकर कुछ खिरजीर और कुछ बंदर बन गए। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों की मौत के लिए बद दुआ की। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों की मौत के लिए दुआ मांगी, तो तीसरे दिन ये लोग मरकर दुनिया से नेस्तो नाबूद हो गए, और किसी को ये भी नहीं मालूम हुआ कि उनकी लाशों को जमीन निगल गई या अल्लाह ताला ने उनको क्या कर दिया। अल्लाह ताला ने इस अजीब और अजीब शान वाकया का तज़किरा कुरान मजीद की सूरह मैदा में फरमाया है, और इसी वाकये की वजह से इस सूरह का नाम मैदा रखा गया। मैदा यानी दस्तरखान को कहते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब उनके भाइयों ने कुएं में डाल दिया, तो एक शख्स जिसका नाम मालिक बिन ज़ैद था, जो दीन का बाशिंदा था, एक काफिला के हमरा उस कुएं के पास पहुंचा और अपना डोल कुएं में डाला। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस डोल को पकड़ लिया और मालिक बिन ज़ैद ने आपको कुएं में से निकाल लिया। तो आपके भाइयों ने उससे कहा कि ये हमारा भागा हुआ गुलाम है, अगर तुम इसको खरीद लो तो हम बहुत ही सस्ता तुम्हारे हाथ बेच देंगे। चुनाचे उनके भाइयों ने सिर्फ दिरहम में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेच डाला, मगर शर्त ये लगा दी कि तुम इसको यहाँ से इतनी दूर ले जाओ कि इसकी खबर भी हमारे सुनने में न आए। मालिक बिन ज़ैद ने उनको खरीद कर मिस्र के बाजार का रुख किया और बाजार में उनको फिरोख्त करने का ऐलान किया। इन दिनों मिस्र का बादशाह दियान बिन वलीद मलेकी था, और उसने अपने वजीर आजम मिस्री को भी मिस्र की हुकूमत और खजाने सौंप दिए थे, और मिस्र में लोग उसके अजीज मिस्र के खिताब से पुकारते थे। जब अजीज मिस्र को मालूम हुआ कि बाजार में एक बहुत ही खूबसूरत गुलाम फिरोख्त के लिए लाया गया है और लोग उसकी खरीदारी के लिए बड़ी बड़ी रकमें लेकर बाजार में जमा हो गए हैं, तो अजीज मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वजन बराबर सोना और उतनी ही चांदी और उतना ही मुश्क और उतने ही हरीर कीमत देकर खरीद लिया, और घर ले जाकर अपनी बीवी जुलेखा से कहा कि इस गुलाम को निहायत एजाज व इकराम के साथ रखो। उस वक्त आपकी उम्र शरीफ 13 या 17 बरस की थी। जुलेखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न और जमाल पर फरिश्ता हो गई, और एक दिन खूब बनाव सिगार करके तमाम दरवाजों को बंद कर दिया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तन्हाई में लुभाने लगी। आपने माज़ अल्लाह कहकर फरमाया कि मैं अपने मालिक अजीज मिस्र के एहसान को फरामोश करके हरगिज हरगिज इसके साथ कोई खियानत नहीं कर सकता। फिर जब खुद जुलेखा आपकी तरफ लपकी तो आप भाग निकले, और जुलेखा ने दौड़कर पीछे से आपका पैराहन पकड़ लिया, जो उसी वक्त फट गया, और आपके पीछे जुलेखा दौड़ती हुई सदर दरवाजा पर पहुंच गई। इत्तेफाक से ठीक उसी हालत में अजीज मिस्र मकान में दाखिल हुआ और दोनों को दौड़ते हुए देख लिया। तो जुलेखा ने अजीज मिस्र से कहा कि इस गुलाम की सजा ये है कि इसको जेल खाना भेज दिया जाए या और कोई दूसरी सख्त सजा दी जाए, क्योंकि इसने तुम्हारी घरवाली के साथ बुराई का इरादा किया था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए अजीज मिस्र, ये बिल्कुल ही गलत बयानी कर रही है। इसने खुद मुझे लुभाया और मैं इससे बचने के लिए भागा तो उसने मेरा पीछा किया। अजीज मिस्र दोनों का बयान सुनकर हैरान रह गया और बोला कि ए यूसुफ अलैहिस्सलाम, मैं किस तरह बावर कर लूं कि तुम सच्चे हो। तो आपने फरमाया कि घर में 4 महीने का एक बच्चा पालने में लेटा हुआ है, जो जुलेखा के मामू का लड़का है, उससे दरियाफ्त कर लीजिए कि वाकया क्या है। अजीज मिस्र ने कहा कि भला 4 माह का बच्चा, क्या जाने वो कैसे बोलेगा। तो आपने फरमाया कि अल्लाह ताला उसको जरूर मेरी बेगुनाही की शहादत देने की कुदरत अता फरमाएगा, क्योंकि मैं बेकसूर हूँ। चुनाचे अजीज मिस्र ने जब उस बच्चे से पूछा तो उस बच्चे ने बा आवाज बुलंद फसीह जुबान में ये कहा, अगर उनका कुर्ता आगे से चिरा हुआ है तो औरत सच्ची है और उन्होंने
غلط کہا، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے چاک ہوا تو عورت جھوٹی ہے۔ اور یہ بچے کی زبان سے عزیز مصر نے یہ شہادت سن کر جو دیکھا تو ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تو اس وقت عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہی کا اعلان کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دست ادب دعا ہے ہمارے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔